welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to see solved exercise of chapter number 1 of history. So I have already uploaded part 1 of this chapter, and I have also uploaded second chapter solved exercise of history, so you can watch that. I will give its link in the description box below. Okay, so now we are going to see chapter number 1, Renaissance in Europe and Development of Sciences. So on page number 9 of your textbook, you are having your exercise. So till question number 4, metallurgy in Europe, we have completed this part in the previous video. Now we are going to start from question number 7, then we will move on question number 6, and then we will discuss about question number 5. Okay, so question number 7, answer the following questions in detail. So this question you have to answer the you have to give detailed answering, so it will come for 5 marks, 8 marks. It will come for 8 marks nearly. So you have to write big answers for such questions. Explain, now they have asked the explain the causes and effects of the European crusades. You can take the screenshot of this picture. Okay, now I will zoom this image so that it is visible to you. So here the first point I have bifurcated in the points and then subpoints. So point A, I have explained what is crusade, then what are the causes of European crusade in point B, and effects of European crusade in point C. So I have also given the points which are not given in your textbook. You can add on your points from the textbook. And this is the continuation of that answer. So you can take the screenshot of this. Over here also you can add on your points because I have given limited points. Now we will move on second question. Give detailed information of development of science and scientific invention during the Renaissance period. अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने बोला ऐड ऑन योर पॉइंट्स उसमें थोड़े, सो इसमें डायरेक्टली आप खुद के मन का नहीं लिखोगे. आपको जो भी लिखना है वो इट शुड बी इन योर टेक्स्ट बुक या फिर इट शुड बी इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. Now even in this question they have asked us about the details. So here I have started with the foundation and the main points which led the foundation of modern science, and then second is about the organizations which were devoted for the scientific studies, and then we have to start with the inventions which are mentioned in your textbook. सो ये भी सब पॉइंट्स में बाइफरकेट किया है. इसको आप चाहो तो और सब पॉइंट्स में बाइफरकेट कर सकते हो, जैसे कि फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग फ्रेम, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है. एंड मेटलर्जी अलग, केमिस्ट्री अलग, एंड अदर इन्वेंशंस. ओके, नाउ ये आप स्क्रीनशॉट लो इसके पहले वाली स्लाइड का, 1 मिनट पहले वाली इमेज का. ओके, दिस इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट, टेलीस्कोप वाला.
And now this is the next image. You can take the screenshot. This is the next image. नाउ यहाँ पे मेटलर्जी के बारे में डिस्कस किया। इसको भी 2 सब पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है। जैसे मैंने पहले कहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटलर्जी, केमिस्ट्री आपको चाहिए तो वैसे आप डिफरेंट पॉइंट्स में बाइफरकेट कर सकते हो। और ये जो पेज नंबर 4 है अदर इन्वेंशंस का, इसमें एक साथ जो भी जितने भी इन्वेंशंस है जिसके बारे में सेपरेटली नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, ऐसे एक रनिंग मेंशन किया है तो उसको मैंने अदर इन्वेंशंस में डाल दिया है। सो जैसे कि वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, थर्मोमीटर, बैरोमीटर वर इन्वेंटेड, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। सो ये पेज नंबर 4 के लिए आपकी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 4 पे जाके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो लास्ट पैराग्राफ है इधर पेज नंबर 4 पे, तो इसमें जो रॉबर्ट बॉयल करके इधर से लेकर ऊपर नेक्स्ट ऊपर राइट हैंड साइड इधर तक आपको वो पॉइंट कंटिन्यू करना है। ओके, इधर लिखना है। इसके लिए ये रेफर करो पेज नंबर 4। ओके, इसको कंटिन्यू करो। एंड नेक्स्ट ऑल्सो यहाँ पे भी एक रनिंग मेंशन किया है निकोलस कॉपरनिकस का। इसके लिए ये पॉइंट है। ऑल्सो इन 1543 CE Nicholas Copernicus told the world that the center of our planetary system is the sun and not the earth. Okay, now we will move on. Sixth question number 6, state your opinion. So यहाँ पे ओपिनियन पूछा है, इसका मतलब आप हिस्ट्री लिख रहे हो। हिस्ट्री में आपको इवन दे आर आस्किंग यू योर ओपिनियन, सो यू डोंट हैव टू राइट योर ओपिनियन ओवर देयर बिकॉज इट इज़ हिस्ट्री और वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो हिस्ट्री में बेसिकली आपको ओपिनियन खुद का कभी भी नहीं लिखना होता है। आपको जो ओपिनियन पार्ट होता है वो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी, ये जो क्वेश्चन है ना स्टेट योर ओपिनियन के, ये सब टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी होते हैं। सो आपको उधर खुद का कुछ लिखना नहीं है, टेक्स्ट बुक से ही रेफ़र करके लिखना होगा। सो ये ओपिनियन है। इधर क्वेश्चन फर्स्ट है, द यूरोपियन नेचुरल साइंटिस्ट ऑफ द 17th century laid the foundation of modern science. Okay, now we were on question number 6, state your opinion. The European natural scientists of the 17th century laid the foundation of modern science. This is your question and इसका आंसर ये है। You can take the screenshot. I hope this is clear. ये वाला पार्ट। नाउ यहाँ पे एक याद रखो कि ये जो 6 पॉइंट है ना, इन यूरोप सम ऑर्गेनाइजेशन वर एस्टेब्लिश फॉर रिसर्च इन साइंस। सो इधर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनका नाम लिखना है। एक्चुअली वो मुझे बाद में याद आया, इसलिए वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। ओके, सो आई विल शो यू दैट पेज, और इसका करस्पॉन्डेंस के आगे का जो कंटिन्यूएशन है वो भी उसी पेज पे। वो करस्पॉन्डेंस के बाद ये बिटवीन से लेके थॉट तक ये पॉइंट है। और ये जो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है वो 6th पॉइंट जो है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन किया
उसके साथ ये कंटिन्यूएशन में लिखना है, ये फॉलोइंग से लेके इम्पोर्टेंस तक। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द इकोनॉमी बेस्ड ऑन सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्टेड इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड ऑल्सो इम्पीरियलिज्म। सो इसका यहाँ पे ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म के पैराग्राफ में, सो ये आपको इधर से लिखना है, राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म से लेके यहाँ तक एक्सेट्रा। सो एक्चुअली ये ओपिनियन है, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इधर, ये ऑलरेडी आपके आंसर इसके टेक्स्ट बुक में है। So there is also no need for you to purchase any reference book for that. इस जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो सब टेक्स्ट बुक में आपके रहते हैं, इसलिए रेफर टू द टेक्स्ट बुक ओनली। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस, बिकॉज बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में आंसर बहुत छोटे छोटे देते हैं, और अगर आपको 8 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐसे मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गए तो आपको ऐसे छोटे छोटे आंसर्स नहीं लिखने होते। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूछा तो यू हैव टू राइट द आंसर इन डिटेल। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। Okay, now we are going to see question number 5. Explain the following statement with reason. इसका question number 1 क्या है? European Renaissance is supposed to have reached its zenith in the 15th and 16th century. So this is your answer for the question. Wait. Now you can take the screenshot. और ये इसका continuation है ये पेज पे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगिन इन इंग्लैंड। सो इसका मैंने आंसर लिखा नहीं है, बट इसका मार्क किया है आंसर आपके पेज जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 8 पे है इसका आंसर। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने एज ए डेफिनेशन रखा है। सो इधर से मैंने स्टार्ट किया। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ माय सेकंड पॉइंट, प्राइवेट से लेके इकोनॉमी तक। थर्ड पॉइंट इज़ ओवर ईयर। यहाँ पे आप जो अंडरलाइन पार्ट किया है कॉटन यार्न के बाद, ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। एंड दिस इज़ फोर्थ पॉइंट, दिस इज़ फिफ्थ पॉइंट, इंग्लैंड से लेके मर्चेंट्स तक, अवेलेबिलिटी से लेके इंग्लैंड तक, दिस इज़ सिक्स्थ पॉइंट। Okay, now we have completed our solved exercise of chapter number 1st, and also we have completed our solved exercise of chapter number 2nd. So don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, and please do like this video and also share this with your friends. और हाँ, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप लाइक करते हो वीडियो को या शेयर करते हो सो लाइक मेरा भी मन करता है कि और वीडियोस पोस्ट करने के लिए। सो प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड ऑल्सो जो टॉपिक अभी नेक्स्ट आपको चाहिए उसका जो भी टॉपिक चाहिए उसका कमेंट में आप कमेंट करो उसके लिए।